Hello students, today I'm going to start a new chapter in physical chemistry, that is electrochemistry. Now the word electro in chemistry gives you an idea about a relationship between electrical energy and chemical energy. Means with the expense of electrical energy you bring about chemical changes and you make different chemicals like NaOH, like chlorine gas, fluorine gas, like pure metals, sodium, potassium, you can extract them. Plus you can purify the impure metals which are being extracted from the ore. That is by using electrical energy you can bring about chemical change. Similarly, with the help of chemical change, that is chemical reaction, you can produce electrical energy, that is making battery, making galvanic cells out of it. Plus this chapter also helps us to understand the natural phenomena of corrosion and the technique of electroplating. So this chapter is very important with respect to physical chemistry and with respect to applications. Now guys, electrochemistry is divided into three parts. First, we are going to study the conversion of electrical energy into chemical energy, that is called as electrolysis. Second, conversion of chemical energy into electrical energy where you make batteries, that is galvanic cell. And third is the physical properties like resistance and conductivity. So we divide the chapter in three parts. The first part of the chapter deals with the conversion of electrical energy into chemical energy. Now this type of conversion is a non-spontaneous conversion. क्यों? Because आप एक chemical reaction carry out कर रहे हो जो खुद से नहीं हो रहा है, but with the help of electrical energy. Therefore, it's a kind of a non-spontaneous conversion where you convert electrical energy into chemical energy. And this process is called as electrolysis. And the cell which we use is called as electrolytic cell. Okay? And the second part is the conversion of chemical energy into an electrical energy. Now this is a kind of a spontaneous reaction where chemicals are being added in certain concentration and a redox reaction will take place. Both cases redox reaction will take place and chemical energy get converted into electrical energy where you get electricity, where you produce electricity by making battery. So this is a kind of a spontaneous reaction जहाँ पर आप chemical energy, chemicals use करके electricity produce करते हो और first part में electrical use करके chemical energy produce करते हो. But here this is a non-spontaneous reaction because chemical reaction carry out करने के लिए आपको electrical energy का जरूरत पड़ रहा है. But here in this case it is a spontaneous reaction because when you mix chemicals they will react and they will produce a electrical energy. And in both conversion a same reactions is going on, that is the redox reaction, reduction and oxidation. So both the changes are through redox reaction. मैं लिख देता हूँ through redox reaction. And second part is the conversion of chemical energy into electrical energy, which is called as electrogenesis. That is making electricity, generation of electricity, generating electricity. And the cell which we use is called as a galvanic or voltaic cell. The name of the scientist. The galvanic cell or also called as a voltaic cell. So voltaic cell or galvanic cell is for electrogenesis or it is also called as electrochemical cell. तो यहाँ पर जो सेल बनेगा उसको हम लोग galvanic या voltaic cell बोलते हैं, name of the scientist, और also called as electrochemical cell जहाँ पर chemical reaction से आप produce करेंगे electrical energy. And here with the help of electrical energy you produce what? Chemical energy. This reaction, the first part is a non-spontaneous. You remember this kind is non-spontaneous reaction. Now here the reaction will be spontaneous because chemical mix करो वो खुद से react करेंगे, redox reaction होगा and they will produce electrical energy. And the third part of the chapter deals with the study of physical properties like conductivity and resistance. So basically third part में हम लोग electrolytic conductance के बारे में discuss करेंगे.
where you apply Ohm's law, where you apply resistance. Okay, so 3 part basically हो गया. We're going to start the first part today, that is a part of electrolysis. तो electrolysis में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करेंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. बट बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस वी फर्स्ट टॉक अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ कंडक्टर्स. के कंडक्टर्स क्या होते हैं. तो कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट कंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स will allow the flow of electrons, मतलब उनका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा. और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कंडक्शन होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयॉन्स. सो अगर हम लोग बेसिक्स की बात करें, सो कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स and second is electrolytic conductors. Now electronic conductors conduction दिखाएंगे due to flow of electrons, and electrolytic conduction दिखाएंगे due to flow of ions. Okay, now electronic conductors are also termed as electrodes. Okay, and electrolytic conductors are normally in solution, either in aqueous solution or in molten solution. उसका भी division देखेंगे, इसका भी division देखेंगे. Remember, electronic conductors 2 टाइप के होते हैं. One is called as active electrodes or active electronic conductors, which are attackable type. And second is a inert type of electrodes. ना ये दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों का सिमिलैरिटी है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पर दोनों का डिफरेंस ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, these electrodes will take part in the redox reaction. मतलब अगर मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड लिख रहा हूं, एग्जाम्पल कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, they will participate in the chemical reaction. मतलब they will take part in chemical reaction, plus they allow the flow of electrons. तो दोनों चीज करेंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे और कंडक्शन भी करेंगे. ठीक है. Now inert electrodes like ग्रेफाइट हो गया, कार्बन ब्लैक है, प्लैटिनियम है, ये टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दे ओनली अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ये सिर्फ और सिर्फ इनसे क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स. मतलब दे विल हेल्प इन कंडक्शन बट दे वोंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. These attackable electrode, they will allow conduction as well as take part in the chemical reaction, और chemical reaction redox ही होने वाला है. ठीक है. तो ये 2 टाइप हो गए. Now electrolytic conductors को हम लोग जब डिवाइड करेंगे, so they can be divided on the basis of their state, whether they are present in aqueous media or they are present in molten state. So यहाँ पर मैं जो एक डिविजन कर रहा हूँ, that is with respect to solvent or without solvent. So on basis of state there can be 2 types. First is called as molten or fused, and second type of solution is called as aqueous. सो मोल्टेन एंड फ्यूज स्टेट का मतलब क्या हो गया. मोल्टेन एंड फ्यूज स्टेट का मतलब हो गया देयर विल बी नो H2. आप NaCl ले लो, ड्राई NaCl विदाउट वाटर, heated to a very high temperature, it will melt. So it will have only Na plus and Cl minus. There will be no trace of water inside. So that will be called as molten or fused NaCl. मतलब आपने प्योर NaCl लिया है विदाउट वाटर, एनहाइड्रस फॉर्म,
उसको हीट किया, वो मेल्ट हो गया, तो वो मोल्टन स्टेट में आ गया, जिसको फ्यूज स्टेट भी बोलते हैं. सो एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl, तो इसमें आपको सिर्फ कौन से आयंस मिलेंगे, Na+ मिलेगा और Cl-. लेकिन एक्वस स्टेट मिल गया मतलब वहां पर वाटर भी है, मतलब द सोल्यूशन इज मेड इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल NaCl in H2O. सो दिस इज एन एक्वस स्टेट. ओके, सो अब यहां पर आपको कौन से आयंस मिलेंगे, Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, प्लस वाटर विल ऑल्सो डिसोसिएट टू a less extent to give what, H+ and OH- ions. NaCl तो पूरा डिसोसिएट होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. Okay, so we have two kinds of division with respect to state. You have a molten or fused state, or you have an aqueous state. Now, electrolytic conductors can also be divided on the basis of their strength. Or you can say on the basis of their dissociation to form ions. Dissociation process where they separate to form ions. ये मैंने आपको ionic equilibrium में बताया था कि they can also be, electrolytic conductor can also be classified on the basis of their strength or dissociation. Now we have strong electrolyte and weak electrolytes. If you remember, strong electrolytes are those which dissociate almost completely. Weak electrolyte which dissociate to less extent, to it produce less ion. Strong electrolyte will dissociate almost completely to it produce more ions. Almost सारा के सारा ions अगर water में लिया तो dissociate हो जाएगा strong electrolyte का, और सब ions में convert हो जाएंगे. But in weak electrolyte the dissociation is less. So वहाँ पर कम ions produce होगी. तो less ions मतलब less conductivity, more ions मतलब more conductivity. So on the basis of their dissociation, there can be a strong electrolyte produces more ions, more dissociation, more conductivity, and you have a weak electrolyte, less dissociation, less conductivity. Now strong electrolyte can be your strong acid like HClO4, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, सारे strong की category में आ गए. Conductance is very high. Then you have a strong base like cesium hydroxide, rubidium hydroxide. Then you have potassium hydroxide, sodium hydroxide, barium hydroxide, BaOH twice को भी category में लिया जाता है. Then you have strontium hydroxides. Salts, all salts are strong in nature. कुछ salt है जैसा mercury chloride, HgCl2, CdBr2, इनको छोड़ के लेकिन जितने भी सॉल्ट हैं सबके सब स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू प्रोड्यूस आयंस, लॉट ऑफ आयंस. वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेस डिसोसिएशन, लेस आयंस, लेस कंडक्टिविटी. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप वीक एसिड्स हो सकते हैं. वीक एसिड लाइक इनऑर्गेनिक एसिड लाइक हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, फॉस्फेरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरस एसिड हो गया, ठीक है, ऑल दोज एसिड्स. देन ऑर्गेनिक एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मतलब इनको छोड़ के, इन 6 एसिड्स को छोड़ के बाकी कोई भी दिखेगा वो वीक है. देन यू हैव अ वीक बेस. वीक बेस मतलब इन स्ट्रॉन्ग बेसिस, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, इनको छोड़ के बाकी जो भी बेस दिख रहे हैं आपको वो वीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो वीक है, CuOH ट्वाइस वो वीक है, ठीक है, FeOH थ्राइस वो वीक है. ये सब वीक बेसिस है. ऑर्गेनिक बेसिस लाइक एनिलीन मैंने लिख दिया, C6H5NH2, it's a weak base. Alkyl amines, RNH2, it's a weak base. Secondary amine, tertiary amine, it's a weak base comparatively as compared to strong electrolytes. So, conductors, electronic, electrolytic. Electronic will be attackable, inert. Electrolytic will be state के हिसाब से molten और aqueous, and strength के हिसाब से strong electrolyte and weak. और याद रखना all salts are strong in nature. तो salts यही category में आ जाते हैं, ठीक है. ऑल सॉल्ट्स वो भी यही स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस पहले ये फंडा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इट्स अ काइंड ऑफ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
I'll rub this out first. बट एक चीज याद रखना आप, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच का एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट करते हो, सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कंडक्शन कम होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्ट्रिक्टेड. तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. रिमेंबर दैट. फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के लिए एक पॉइंट याद रखने का, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, आयंस विल फॉर्म इन अ ग्रेटर एक्सटेंट, बिकॉज हीट से ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा. सो यहाँ पर टेम्परेचर से कंडक्टिविटी कम होता है या टेम्परेचर से कंडक्टिविटी बढ़ता है. यहाँ पर क्योंकि आयंस बढ़ते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्ट होता है, इसके लिए कंडक्टिविटी कम हो जाता है. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड किया केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए. ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस, द फर्स्ट पार्ट. Now let's talk about the first part in electrochemistry. Part 1 is electrolysis. In electrolysis, simple चीज क्या है? There is a conversion of electrical energy into chemical energy. मतलब the expense of electrical energy you carry out chemical reaction. So ये chemical reaction खुद से नहीं हो रहे, electrical energy की वजह से हो रहे हैं. तो basically it's a kind of a non-spontaneous chemical reaction. Okay, now let us talk about a simple electrolysis process to study the electrolysis. Now first, अगर ये word बराबर देखोगे ना, so electro का मतलब होता है electrical energy, lysis का मतलब होता है breaking. Breaking of what? Breaking of electrolyte. आप electrolyte को break करके दो डिफरेंट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल NaCl, सिंपल एग्जाम्पल ही लेता हूं. NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस में लाओगे, मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl, तो NaCl इज अ सॉल्ट. व्हेन यू ब्रिंग दिस NaCl into the experiment of electrolysis in the fused or molten state, you break that NaCl into pure sodium and pure chlorine gas, so you will get a grayish white metal. मतलब NaCl जो आपने लिया है उसको आपने कन्वर्ट किया एक ग्रेइश व्हाइट मेटल सोडियम में और एक ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन में. सो दे आर बीन कन्वर्टेड, दे आर बीन ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू देयर प्योर स्टेट. So that is basically electrolysis. You add electrical energy, you break the chemical. When you break the chemical, they will undergo reaction, reduction and oxidation. क्योंकि यहाँ पर भी redox ही होगा. And because of the reduction and oxidation, they are being converted into a different form. Either they are converted into a pure form or elemental form. So basically, electrolysis में कौन सा reaction हमको देखने को मिलेगा? Redox reaction, reduction and oxidation. So let's take an example to understand the entire electrolysis. The first example is electrolysis of fused or molten fused NaCl. यूजिंग, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड. मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोड में यूज कर रहा हूं वो इनर्ट टाइप है. इनर्ट टाइप मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ उसका एक ही काम होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस प्रोवाइड करेगा दूसरे आयंस को रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में जाने के लिए, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इट मींस दैट प्लैटिनियम खुद ऑक्सीडाइज होकर Pd से Pd+2 नहीं बनेगा. ठीक है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इट विल अलाउ द अदर आयंस टू अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑन इट्स सरफेस. तो इसके लिए हम लोग सपोज एक कंटेनर ले रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल.
In container, let's consider a container. Now it consists of molten NaCl. मतलब इसमें NaCl जब डिसोसिएट होगा हीट से तो इट प्रोड्यूस Na plus and Cl minus ions in the liquid state. Okay, so they are present in the liquid state, Na plus and Cl minus ions. So in this, I'm adding 2 platinum rod. First, second. Now this is being connected to one of the terminal of the battery, and this is connected to the another terminal of the battery. तो हम लोग ने इसको 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. नाउ सपोज ये हम लोगों ने सपोज हम लोगों ने ये एक पॉजिटिव से कनेक्ट किया है एंड दिस इज नेगेटिव. सो हियर दिस इज बीन कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and this platinum electrode is being connected to the negative terminal of the battery. Simple hai. Okay, now Na plus and Cl minus are present. Now what will happen when you switch on the battery? Battery को जब आप switch on करोगे तो क्या होगा? What will happen? So first of all, this electrode have positive charge on it and some negative charge on it, connected to the 2 terminals of the battery. Now you have a Na plus and Cl minus ions. Now Na plus ions, they are cations. Cl minus ions, they are anions. Now Na plus ions will go to the negative electrode. Since cation is positive charge, it will go to a negative electrode. Therefore this negative electrode, यहाँ पर कौन जाएगा? cation जाएगा. तो this electrode जहाँ पर cation जा रहा है is called as cathode. And this electrode where anions are going are called as anode. ठीक है? So chloride will goes to anode and Na plus will goes to cathode. Now what will happen in anode and cathode? You need to remember. Always remember that at anode oxidation will take place, at cathode reduction will take place. Oxidation मतलब loss of electron, reduction means gain of electrons. Okay, so keep one thing in mind. चार्ज को याद नहीं रखने का कि एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है, क्योंकि सेकेंड पार्ट जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दैट इज इलेक्ट्रोजेनेसिस, वहां पर एनोड नेगेटिव बन जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, मतलब चार्ज टर्न हो जाते हैं, बट द प्रोसेस विल रिमेन कांस्टेंट. कि एनोड चाहे पॉजिटिव आप लिखो नेगेटिव लिखो वहां पर ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा. सो यू रिमेंबर इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोसेस, नॉट बाय रिस्पेक्ट टू चार्ज, क्योंकि आप भूल जाओगे चार्ज क्योंकि वहां पर टर्न हो जाता है. So in case of anode, oxidation will take place. So you remember anox, anode oxidation. In case of cathode, reduction will take place. So remember red cat, reduction and cathode. ये दिमाग में डाल देने का बताने से पहले. Okay. So anode पे होगा reduction, anode पे होगा oxidation, cathode पे होगा reduction. Now process कैसे हो रहे? Let us try to understand कि process कैसा होगा इस केस के अंदर. So at anode, I'll write down the chemical reaction. This chemical reaction will definitely a redox, oxidation reduction. So at anode के पास कौन जा रहा है? Cl minus ions. Now let's talk about Cl minus ions. Cl minus ions. It has 8 electrons in the outermost shell. Chloride है वो, ठीक है? Now for balancing के लिए मैं इसको 2 moles ले रहा हूँ कि सपोज 2 moles का हम लोगों ने dissociation reaction लिखना है. तो this is also one of the Cl minus ions, have 8 electrons in the outermost shell. आपको इतना specifically बताने की जरूरत नहीं है. You can just write down 2 moles of Cl minus and just write down the reaction. मैं आपकी explanation के लिए दे रहा हूँ. Now if you talk about normal chlorine, so chlorine has 7 electrons in the outermost shell, 2, 8, 7. जब वो दूसरे क्लोरीन से कंबाइन होता है तो वो लोग अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं टू फॉर्म Cl2 गैस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ठीक है. नाउ these chloride ions will reach towards chloride ions having 8 electrons will reach towards anode
एनोड के सरफेस पे आने के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेल कर देंगे तो ये बन जाएगा क्लोरीन, माइनस चार्ज निकल जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, फिर एक क्लोरीन आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल शेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बन गया, क्लोरीन गैस Cl2। तो इसकी जगह पे मैं सीधा लिख सकता हूं कि यू विल गेट अ Cl2 इन द गैसियस स्टेट। तो यहां से क्लोरीन गैस, ग्रीनिश येलो गैस निकल जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनोड। सिंपल है। So electrons are lost, therefore this process is called as what? Oxidation. Now these 2 electrons through the external circuit, मतलब metal से wire से battery से होते हुए, these electrons comes on the surface of cathode. So basically electron कहां से flow हो रहा है? from anode टू कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और कैथोड से एनोड कन्वेंशनली हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो एनोड से कैथोड पे, बट एनोड से कैथोड पे जाएगा थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। यस, मेटल, वायर, मेटल। सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, सोल्यूशन में सर्किट कंप्लीट करने के लिए आयंस फ्लो हो रहे, क्लोराइड जा रहा है एनोड की तरफ, दैट इज अनायंस गोस टू एनोड, एंड कटायन, नाउ इट्स टाइम फॉर कटायन। कटायन कौन है हमारा? Na+। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखेगा इट विल जंप टू ग्रैब द इलेक्ट्रॉन, बट Na+ के बारे में स्टडी करेंगे। सो वी नो दैट प्योर सोडियम मेटल इज 2,8,1 प्योर सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, ग्रेइश व्हाइट मेटल। मतलब सोडियम उसके एलिमेंटल स्टेट में आएगा तो ग्रेइश व्हाइट मेटल बनेगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। बट अगर मैं Na+ की बात करूं तो Na+ इज 2,8। सो नाउ दिस Na+ will reach to cathode. So we have Na+ ions in liquid state, another Na+ ions in liquid state. You have 2 moles of electrons which are traveling from anode and reach to cathode. So 2 moles of electrons है each electron। अब ये क्या है 2,8, ये भी क्या है 2,8। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सरफेस पे, इसके सरफेस पे, किसके सरफेस पे? प्लैटिनियम के। दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू प्योर सोडियम इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट। तो यहां के सरफेस पे सोडियम सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। सिंपल। So when you write down the net reaction, NCR, net cell reaction, so there will be 2 chloride plus 2 moles of Na+, ठीक है, both of them in liquid state, so we can write down Na+ and Cl minus is 2 moles of NaCl, ठीक है। Now it is broken down and it is being converted into sodium in solid state which is deposited on the surface of cathode। निकाल के स्क्रैप करके केरोसिन में डाल देना चाहिए सोडियम को, बिकॉज मॉइस्चर रहेगा तो उससे एक्सप्लोसिव रिएक्शन, विग्रस रिएक्शन दे सकता है। प्लस क्लोरीन, ग्रीनिश येलो गैस जो यहां से रिलीज हो रहा है। तो सी प्रॉपर्ली, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द एंटायर केमिकल इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स प्योर स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। बट ये ब्रेकिंग खुद से हुआ क्या? नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हुआ। मतलब यू टेक NaCl, अगर आप उसको हीट भी कर दोगे तो वो सोडियम और क्लोरीन के प्योर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। सो यू ऐड 2 इलेक्ट्रोड्स, यू पास इलेक्ट्रिक करंट, यू कैरी आउट द रेडॉक्स रिएक्शन एट 2 ऑपोजिट इलेक्ट्रोड एंड यू गेट द प्योर एलिमेंटल फॉर्म। सो यू break down a chemical with the help of electrical energy, that is called as electrolysis. Okay, so this is the first example to understand the basic idea of electrolysis. And if to remember, the electrons always travel through external circuit from anode to cathode and the current is from cathode to anode. और internal circuit में हमेशा ions flow होते हैं। anode पे oxidation होगा, cathode पे reduction। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक second example लेते हैं। Okay, let's start with the second example. But before starting the second example, you have to remember
small concept which we'll be studying detail later. If you see a value of ERED written somewhere, ERED is called as reduction potential. Okay, it's a calculative value. Its unit is in volt because वो potential है, तो it's a calculative value. हम लोग आगे देखेंगे how to calculate these values. But आगे experiment समझने के लिए you need to remember, example समझने के लिए you need to remember this term कि ERED is called as reduction potential and E0 RED is called as standard reduction potential. Standard मतलब आपने ये reduction potential को find किया in standard condition. Standard condition मतलब temperature होना चाहिए 298 Kelvin. Standard ambient temperature, STP नहीं, standard ambient temperature. STP 0 डिग्री होता है, standard temperature pressure 0 डिग्री, ये standard ambient temperature pressure है, that is 298 Kelvin. तो 298 Kelvin होना चाहिए. अगर आपने कोई भी आयंस या इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन में लिया है तो वो सोल्यूशन 1 मोलार का होना चाहिए, और अगर गैस है तो वो 1 atm प्रेशर का होना चाहिए. That is a standard condition. So when you check reduction potential of particular electrode in standard conditions where solution is 1 molar or gas is 1 atm and temperature is 298, then it is called a standard reduction potential. ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, इसका यूनिट वोल्ट में होता है. कैसा कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि E0 RED इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अभी किसी भी सब्सटेंस का अगर E0 RED वैल्यू बहुत ज्यादा है सो मतलब उसका कैपेसिटी रिडक्शन में जाने का ज्यादा है, तो वो रिडक्शन में जाएगा, तो रिडक्शन में जाएगा मतलब इट विल गेन इलेक्ट्रॉन easily. So if E0 RED value is more, then capacity of reduction is more. Similarly, E0 oxy is called as standard oxidation potential, tendency to undergo oxidation. So if E0 किसी भी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा दिया है मतलब कैपेसिटी of that substance to undergo oxidation is more. ठीक है. So अगर A और B दो सब्सटेंस है, A का रिडक्शन पोटेंशियल B से ज्यादा है तो A जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, B जाएगा ऑक्सीडेशन में. अगर A का रिडक्शन पोटेंशियल B से ज्यादा है तो A जाएगा रिडक्शन में और B जाएगा ऑक्सीडेशन में. अगर B का रिडक्शन पोटेंशियल जाएगा तो B जाएगा रिडक्शन में, A will undergo oxidation. So when you compare two substances, if one has greater reduction potential, the second automatically will have greater oxidation potential. तभी तो redox reaction होगा. Simple है समझने के लिए. Okay. Now second case लेते हैं हम लोग. The second case is the electrolysis of aqueous NaCl. देखो ये बार मैंने क्या लिखा है, aqueous condition NaCl. Again using platinum electrode. Platinum electrode is again a inert electrode जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उनका काम क्या होता है कि they allow the passage of electric current, flow of electrons, और उनके इंटरफेस पे रिएक्शंस होते हैं. अब एग्जांपल लेने के लिए सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि वी कंसीडर अ बीकर, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनियम के हैं एंड बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. So this is basically an aqueous NaCl solution. These two are platinum, one is connected to the positive, one is connected to the negative. तो एक आपका जो है वो एनोड है और दूसरा आपका कैथोड है. सिंपल. नाउ यहाँ पर NaCl रिएक्शन लिया आपने, so you need to remember aqueous state है. तो aqueous state में कौन से आयंस होते हैं? First of all, when NaCl dissociate, it produces 2 moles लिख देता हूँ. It produces Na plus and Cl minus ions in aqueous media. So 2 moles of Na plus ions and 2 moles of Cl minus ions in which media? Aqueous media. Balancing के लिए मैं 2 मोल ले रहा हूँ. जब आप पूरे रिएक्शन समझ जाएंगे आप 1 मोल में भी लिख सकते हैं. Then water also start behaving a weak electrolyte. वो एक weak electrolyte है, but NaCl डालने से उसका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, तो इट विल डिसोसिएट बट टू अ लेस एक्सटेंट एज कंपेयर टू NaCl. सो जब वो डिसोसिएट होगी इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस प्लस 2 मोल्स ऑफ H+. मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुमको वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है तो वाटर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हमेशा 4 मोल्स लो,
ताकि OH माइनस में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। H प्लस तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे, H प्लस अंडरगो रिडक्शन, बट OH माइनस एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। सो यहाँ इसका रिएक्शन ब्रेकिंग करके मैं दिखाऊंगा। तो बैलेंसिंग के लिए मैं इसको भी 4 मोल्स ले लेता हूं, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन दिस सोल्यूशन वी हैव टू कटायंस Na प्लस H प्लस, टू अनायंस OH माइनस Cl माइनस, बट जाएगा तो कोई एक ही। मतलब एनोड पे दो लोगों का कंपटीशन चल रहा है। एनोड पे कौन जाते हैं? अनायंस जाते हैं। सो वी हैव टू अनायंस हियर, दे विल कंपीट टू गो टू एनोड। उनका कंपटीशन के लिए हम लोगों को क्या समझना चाहिए कि विच विल गो टू एनोड एंड विच विल, और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली विच अनायन विल गो टू एनोड विल डिसाइड बाय दीज वैल्यू। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी एट एनोड क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं। तो एट एनोड डेफिनेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इफ क्लोराइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एट एनोड, क्लोराइड अगर ऑक्सीडेशन में जाएगा एनोड पे, तो आपको पता है इट विल लूजेस, क्लोराइड विल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म Cl2 गैस। अगर आपने इसको 4 मोल लिया है तो इट विल रिलीज 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ Cl2 गैस। सिंपल। So this is the oxidation of chloride. Now the potential, the oxidation potential, E naught oxy of this reaction, E naught oxy for chloride, E naught oxy, Cl माइनस से वो क्या बन रहा है? Cl2 बन रहा है। देखो Cl माइनस से Cl2, तो इस प्रोसेस के लिए जो पोटेंशियल यूज हो रहा है, that potential is minus 1.36, minus 1.36 volt. Okay. Now what happens when this anion goes to anode and undergo oxidation? So जब anion जाएगा, anion कौन सा है? OH माइनस, जो वाटर से आ रहा है। इसका anions का तो हम लोगों ने लिख दिया कि when chloride undergoes oxidation in anode, the oxidation potential required is minus 1.36. Similarly, जब हाइड्रोक्साइड जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, किधर पे? एनोड पे। ये भी anion है। सो हाइड्रोक्साइड में, अब मैं आपको ब्रेकिंग सिखाता हूं, इसका रिएक्शन कैसा लिखते हैं व्हेन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोक्साइड इज बराबर देख लेना, नेगेटिव चार्ज OH, OH विद अ नेगेटिव चार्ज, OH विद अ नेगेटिव चार्ज। सो ये चारों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे, रिलीज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स इन लोगों ने, ठीक है। लोन पेज हटा देता हूं, जरूरत नहीं समझने की। सो दे हैव रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ देखो, दिस विल कंबाइन टू फॉर्म H2O, दिस विल कंबाइन टू फॉर्म H2O, O विल गोज टू O एंड फॉर्म O2। सो इसकी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होगा 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस O2 गैस। सो व्हेन हाइड्रोक्साइड ऑफ वाटर अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट विल प्रोड्यूस अ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। वाटर का तो लिक्विड लिखते हैं हम। When chloride undergoes oxidation, it will produce a chlorine gas. अच्छा, इसका oxidation potential, the oxidation potential of OH minus from O2, अब इसका भी एक वैल्यू होगा, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, and this value comes around minus 0.4 volt. Obviously, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयंस इज ग्रेटर देन क्लोराइड। अब कोई बोलेगा सर हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन और ये वाटर से प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब हाँ, आप इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो कि 4 मोल्स ऑफ वाटर, ध्यान देना इस रिएक्शन को, फॉर दिस रिएक्शन यू कैन राइट डाउन दैट 4 मोल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस 4 moles of OH minus ions plus 4 moles of H plus. Now these 4 moles of OH minus ions finally gives 4 moles of electrons plus 2 moles of water plus oxygen. So when you write down the net reaction, ये cancel हो जाता है, देखो ये cancel हो जाएगा. So you write down, अच्छा इसमें से 4 गया, इसमें से 2 cancel हुआ तो 2 बचेगा इधर पे. So you get 2 moles of water for giving, you're losing 4 moles of electron plus 4 moles of H plus plus O2 gas. So this will be the
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर, कि वाटर जब ऑक्सीडेशन में जाएगा तो क्या देगा, देखो एंड प्रोडक्ट तो वही है, एंड प्रोडक्ट तो वही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। अब इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन दिस मैनर, where you can say कि हाइड्रोक्साइड ऑफ वाटर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और वाटर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्योंकि एंड में सेम ही चीज है, आपने अपने पर हाइड्रोक्साइड से ऑक्सीडेशन करवाया। अच्छा, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन इज -0.4 एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर क्लोराइड ऑक्सीडेशन इज -1.36। और वैल्यूज को देख के आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर और यू कैन से OH माइनस आयंस जो हम लोग ने भी निकाला इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस आयंस। तो अब मुझे बताओ, सिंपल है, अगर मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा कि हाइड्रोक्साइड्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोराइड, तो कौन सा अनायन हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड में से कौन सा अनायन है जो एनोड पे जाएगा, तो स्टूडेंट मुझे यही बोलेंगे, सर हाइड्रोक्साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब द टेंडेंसी ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इज मोर, सो इट विल गो टू एनोड। यही होता है और यही होना चाहिए। बट पहले ही पार्ट में आपको थोड़ा सा यहां पर एक ट्विस्ट है, वो ये है कि एक्चुअली में OH माइनस आयन शुड गो टू एनोड, बट क्लोराइड चले जाता है इंस्टेड ऑफ OH माइनस आयन। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ओवर वोल्टेज। व्हाट इज दैट ओवर वोल्टेज? बराबर सुनना, ये एक्चुअली में सिलेबस के स्कोप में नहीं होता है इसको पूरा समझने के लिए, बट लिटिल बिट आइडिया आप लोगों को दिमाग में डालने के लिए कि OH माइनस आयंस व्हेन गो टू एनोड, OH माइनस आयंस जब एनोड पे जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। Cl माइनस आयंस जब एनोड के सरफेस पे जाएगा, प्लैटिनम के सरफेस पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। दोनों का एक ही काम है, यहां आगे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। बट OH माइनस आयंस require certain extra voltage to release that electron on the surface of anode. इसके इंटरफेस पे जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, the electron process of releasing is slow. It require little bit of extra voltage which is called as over voltage. So because of that extra voltage, Cl minus का चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के on anode as compared to OH minus ions. So जाना चाहिए था OH minus ions, but जा रहा कौन है? Cl minus ions. Why? Because the process of release of electron by the OH minus ions on the interface is little bit slow. It means that it requires over voltage. जो पोटेंशियल इसको चाहिए उससे थोड़ा और ज्यादा पोटेंशियल लगेगा इसको सरफेस पे रिलीज करने के लिए। That is the reason Cl minus ions will release electron more easily as compared to OH minus ions. हालांकि जाना चाहिए था OH minus ions को. So you have to remember कि due to over voltage Cl minus ion goes to anode and get oxidized instead of OH minus ions. तो यहां से क्लोराइड फाइनली NaCl में से हम लोग ने ये देख लिया कि आउट ऑफ Cl minus and OH minus ions chloride will goes to anode and chlorine gas will be formed. फिर इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो के एक्सटर्नल सर्किट से कैथोड पे आ गए। अब कैथोड पे भी कंपटीशन चालू है, बराबर देखेंगे हम लोग एट कैथोड क्या होने वाला है, कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब दो कटायंस है लग गए कैथोड पे जाने के लिए, कॉम्पिटिशन इज बिटवीन टू कटायंस। यहाँ पर कंपटीशन चालू हो गया, Na+ जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने के, H+ जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने। तो अगेन उसका आंसर देगा रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट विल गो टू दी कैथोड एंड ग्रैब द इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन। यहाँ पर कोई ओवर वोल्टेज का सीन नहीं होगा। सो अगर Na+ जा रहा है, इफ Na+ it will gain those 4 moles of electron, it will form sodium in solid state on the surface of cathode. अब जब ये रिड्यूस होगा सो इसके रिडक्शन में भी सर्टेन पोटेंशियल यूज होने वाला है। दैट पोटेंशियल विल बी कॉल्ड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल, एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na+ वाज फाउंड टू बी -2.71 मोल। मतलब इस रिएक्शन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 मोल का। अब H+ जाएगा तो क्या होगा, व्हेन H+ गोस टू कैथोड it gains 4 moles of electron and forms 2 moles of H2 gas. So ये aqueous state से gaseous state में आ गया। अब इसका भी कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा,
for the reduction of H plus ions, its reduction potential was found to be minus 0.83 volt. minus 0.83 volt. अब बराबर देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का, H प्लस का. देखो H प्लस विल अंडरगो रिडक्शन और Na प्लस नहीं जाएगा, और जब वो रिडक्शन में जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? H2 गैस. सो वी कैन राइट डाउन कि सिंस E naught RED, reduction potential of H plus is greater than reduction potential of Na plus, therefore H plus in aqueous media will get reduced at where? Cathode. Na plus नहीं होगा. So यहाँ पर H प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस. मतलब क्लोरीन गैस भी निकल गई, H2 गैस भी निकल गई. तो सोल्यूशन में बचा क्या है? सोल्यूशन में बच गया है OH माइनस आयंस, और सोल्यूशन में क्या बना है? Na प्लस आयंस. मतलब बेसिकली ये पूरा सोल्यूशन किसका बच गया? NaOH का. तो आपने सोल्यूशन लिया था NaCl का. NaCl इज अ न्यूट्रल कंपाउंड. आपको याद होगा NaCl एक न्यूट्रल कंपाउंड है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. और जब NaCl पानी में होता है तब pH पानी का 7 होता है, 7, न्यूट्रल. बट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बचा क्या सोल्यूशन में? लॉट ऑफ OH माइनस आयंस. सो सोल्यूशन क्या हो गया आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस? बेसिक. सो बेसिकली pH of the solution has increased. मतलब यहाँ पर जो pH होगा वो greater than 7 होगा. So after electrolysis, what is left inside the solution? Na plus and OH minus ions, which make the solution basic. Therefore, pH will be greater than 7. And the time of electrolysis, the pH was 7. Okay. And one more point. आप इस H plus आयंस के रिएक्शन को इस वाटर के फॉर्म में भी लिख सकते हो. जैसा हाइड्रोक्साइड को अपने वाटर में लिखा, वैसे H plus को लिखो. कैसा लिखोगे? बहुत सिंपल है. Water will dissociate to form 4 mole of H plus and 4 moles of OH minus ions in aqueous media. These 4 moles of H plus ion will gain 4 moles of electron to form 2 moles of H2 gas. Then you write down the net reaction. तो H plus cancel हो जाएगा इधर से. तो you will get 4 moles of water plus 4 moles of electron producing 2 moles of H2 gas. ठीक है? Plus you get 4 moles of OH minus ions in the solution. तो H2 गैस निकल गया, तो क्या बचा सोल्यूशन में? OH माइनस आयंस. तो ये नेट रिएक्शन आप इसकी जगह पे भी लिख सकते हो. बट याद रखने का, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही जाएगा रिडक्शन में, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वही जाएगा ऑक्सीडेशन में. एंड देन यू चेक द pH ऑफ द सोल्यूशन. पहले आपने NaCl लिया था तो वो न्यूट्रल था, इसके लिए pH 7 था. बट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन क्लोरीन एस्केप, hydrogen gas escape from the solution. So what is left inside the solution? NaOH, which makes the solution basic and the pH of the solution increases and goes to 7. So after electrolysis the pH is increased. अगर कभी MCQ आया तो अब यहाँ पर मुझे ना स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, सर हमको कैसा मालूम पड़ेगा कौन सा अनायन पहले डिस्चार्ज होगा, कौन सा कटायन पहले डिस्चार्ज होगा? ये हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि विच कटायन विल गोज टू कैथोड, विच अनायन विल गोज टू एनोड? तो मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ. यू रिमेंबर दिस शॉर्टकट. ये शॉर्टकट के हिसाब से आप चलना, सारे आंसर्स आपको इसके हिसाब से आ जाएंगे. ओके, so I'll rub this out first. So which ion will discharge first? तो let us talk about that ion. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कटायन की. कटायन के ऑर्डर की बात करते हैं. कौन सा कटायन पहले रिडक्शन में जाएगा? ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर अ सीक्वेंस. फर्स्ट देयर इज गोल्ड, देन सिल्वर, देन कॉपर. सो देन यू हैव अ गोल्ड कटायन Au प्लस. देन उसके बाद में आ जाता है Ag प्लस. देन यू हैव Cu2 प्लस. देन यू हैव H प्लस. देखो वाटर का H प्लस किधर पे आ रहा है? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के बाद में गेट H प्लस. देन यू हैव जिंक, एल्यूमिनियम एंड सोडियम. Zn2 प्लस, Al3 प्लस, Na प्लस. मतलब अगर Ag प्लस और H प्लस के बीच में कंपटीशन हुआ तो Ag प्लस विल अंडरगो रिडक्शन, H प्लस सोल्यूशन में रह जाएगा.
H प्लस और Na प्लस के बीच में हुआ तो H प्लस अंडरगो रिडक्शन Na प्लस सोल्यूशन में रह जाएगा। ये कॉमन आयंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉमन आप लोग देखेंगे रिएक्शन में, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, मतलब ये सारे आयंस आपको ज्यादा दिखाई देंगे इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइट, सो दे गेट रिड्यूस फर्स्ट। तो यहाँ पर पहले रिडक्शन में गोल्ड है, देन सिल्वर, देन कॉपर, देन हाइड्रोजन, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम, और बाकी डिफरेंट जो कटायंस है वो इसके नीचे ही आ रहे हैं, बाकी सारे कटायंस इसके नीचे आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कटायंस दे विल गिव यू, दैट विल कम आफ्टर दिस। सो यू हैव अदर कटायंस हियर, मतलब वो ऑर्डर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगा, बट उतना ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट कटायंस याद रखने का। अच्छा, अनायंस में अगर कंपटीशन हुआ तो अनायंस में हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। सो फॉर अनायंस याद रखने का, लेस ऑक्सीजन गेट डिस्चार्ज, लेस ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन, मतलब फॉर एग्जांपल हलाइड्स Cl माइनस Br माइनस I माइनस, उसके अंदर ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो वो पहले डिस्चार्ज होगा कंपेयर टू OH माइनस आयंस। अच्छा, OH माइनस डिस्चार्ज होता है तो ऑक्सीजन गैस देता है, याद रखना। देन इट विल, अगर OH माइनस है और साथ में NO3 माइनस है तो OH माइनस जाएगा डिस्चार्ज में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। अच्छा, NO3 माइनस और SO4 माइनस 2 है तो NO3 माइनस डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर टू सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना ऑक्सीडेशन का कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो हलाइड OH माइनस में से हलाइड जाएगा, OH माइनस और नाइट्रेट में से OH माइनस आयंस जाएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डिस्चार्ज ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से डिस्चार्ज पोटेंशियल हो रहा है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of CuSO4, इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेक करना है इसको। तो अब देखो यहाँ पर कौन से आयंस प्रेजेंट है। पहली बात, CuSO4 डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Cu2 प्लस देगा और सल्फेट देगा एक्वस सोल्यूशन में। यहाँ पर मैं AQ गरी गरी नहीं लिख रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में है तो H2O भी डिसोसिएट होगा to produce what, H plus and OH minus ions. So you have two cations and two anions. Question ये एनोड पे कौन जाएगा। So out of Cu2 plus and H plus, competition किसका है, Cu2 plus H plus. So Cu2 plus will goes to cathode. तो ये सिलेक्ट कर लिया कि भाई Cu2 plus cathode पे जाएगा। अच्छा, out of sulfate and OH minus ions, which will goes to anode, OH minus ions will goes to anode. तो कैथोड पे रिएक्शन हो गया, Cu2 plus 2 moles of electrons give you Cu solid, that is reduction. Anode पे oxidation होगा, that is OH minus 2 moles ले रहा हूँ, तो it will give you 2 moles of electrons plus H2O plus half mole of oxygen gas। देखो जब आप 4 मोल लेते हो तो 2 moles of oxygen होगा, प्रीवियस दिखाया मैंने रिएक्शन। सो ये आपके दो रिएक्शन हो गए, एनोड कैथोड पे हो गया रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन ये है कि Cu2 plus भी गया सिस्टम से, OH minus आयंस भी गया सिस्टम से। सो सोल्यूशन में क्या रिमेनिंग है, H plus रिमेनिंग है और SO4 minus 2 रिमेनिंग है। अच्छा, H plus होने की वजह से सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक। ठीक है, H plus है ज्यादा, मतलब pH और कम हो जाएगा। पहले आपने CuSO4 लिया था, CuSO4 इज एसिडिक सॉल्ट, बट OH माइनस आयंस सोल्यूशन में जाने की वजह से pH और कम हो जाएगा, तो मतलब pH ऑफ द सोल्यूशन विल डिक्रीज। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल लेते। सपोज आई हैव टेकन aqueous solution of AlCl3। चलो AlCl3 हमारा, चल ले लेना इलेक्ट्रोलिसिस, चलो क्या होता है देखते हैं। सो AlCl3 में Al+3 है, सो यू हैव AlCl3 which will dissociate to form Al+3 plus 3 moles of Cl minus ions. Okay, now water will also dissociate aqueous media to form H plus and OH minus ions. ये सब aqueous media के लिए। मोल्टन में तो वाटर रहेगा ही नहीं ना, तो कटायन आयन एक ही रहता है। Now H plus and Al3 plus में से बराबर देखो H plus, so H plus जाएगा सर कैथोड पे। अच्छा, Cl minus और OH minus में से सर Cl minus ions जाएगा, less oxygen, in fact no oxygen. So we can write down add anode Cl minus ions, aqueous media forms Cl2 gas, leaves 2 electrons. Add cathode, H plus ions will gain those 2 electrons and form H2 gas। मतलब सिस्टम में से हाइड्रोजन गैस निकल गया, क्लोरीन गैस निकल गया, मतलब H plus निकल गया, Cl minus निकल गया। अब सोल्यूशन में क्या बच गया है,
AlOH thrice. So solution में after electrolysis you have Al plus 3 and you have OH minus ions. So OH minus ions होने की वजह से solution क्या हो गया? Basic, मतलब pH of the solution will increase. pH बढ़ेगा. पहले आपने AlCl3 लिया था. AlCl3 salt of weak base and strong acid. तो पहले pH लेस देन 7 था, अब pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा. इंक्रीज. तो कोई भी सॉल्ट दिया, अब सपोज मैंने सॉल्ट आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल गिवन अ सॉल्ट ऑफ AgNO3. थर्ड एग्जांपल AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Ag प्लस रहेगा, NO3 माइनस रहेगा, एक्वस फ्रॉम AgNO3, और एक्वस की वजह से H प्लस होगा और OH माइनस होगा. अभी कैथोड पे कौन जाएगा? दोनों में से सर Ag प्लस. देखो Ag प्लस पहला आ रहा है. अच्छा, NO3 OH माइनस में से कौन जाएगा सर? OH माइनस आयंस. Ag प्लस क्या प्रोड्यूस करके देगा? Ag सॉलिड आफ्टर रिडक्शन. OH माइनस क्या प्रोड्यूस करके देगा? ऑक्सीजन गैस आफ्टर ऑक्सीडेशन. सो दिस टू आर गॉन. नाउ व्हाट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन? HNO3 मतलब सॉल्यूशन एसिडिक और ज्यादा हो गया और pH ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज. ओके गाइस, क्यों कम हो रहा है pH? क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, OH माइनस कम हो रहा है. So you can predict the pH, you can predict which will discharge at a respective electrode, अगर आपको ये examples याद है. ठीक है guys? So this was all about electrolysis process. अब आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक किया, प्योर एलिमेंटल स्टेट में कन्वर्ट किया. तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि कितना कन्वर्ट किया. मतलब नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. के इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड करने से कितना अमाउंट का केमिकल आप बना रहे हो. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इज गिवन बाय a law called as Faraday law of electricity or electrolysis. Faraday law of electrolysis. इसके दो लॉ है, दोनों भी समझेंगे. बहुत इजी है, जो हम लोगों को क्वांटिटेटिव आइडिया देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के बीच में. ओके, now let us discuss a quantitative relationship between electrical energy and chemical energy. It means with the expense of electrical energy, with the expense of charge, with the expense of number of moles of electrons, how much amount of substance is liberated अगर वो गैस है, और deposited अगर वो solid form में है, at respective electrodes. For example, हम लोगों ने molten NaCl लिया. In that molten NaCl you add two platinum electrode connected to two terminals of the battery. You switch on a battery. A certain amount of charge will flow through the entire cell. Now what will happen? Because of the electrical energy, Na plus Cl minus will separate out, goes to the opposite electrode. Sodium will undergo reduction, it get deposited at cathode. Chlorine will undergo oxidation at anode, so it will get liberated in a form of greenish yellow gas. So when you remove a cathode, you scrape out the sodium, you can measure the mass of the sodium. So here we are going to find out the quantitative relationship, how much amount of solid is formed or how much amount of gas is liberated when a particular electrolyte undergoes electrolysis. Okay, now this relationship is given by Faraday, so it is called as Faraday's laws of electrolysis. Basically two laws. So हम लोग सबसे पहला लॉ डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट लॉ. ना फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? सिंपल आइडिया है. सिंपल आइडिया क्या है कि आपने बैटरी सपोज 1 मिनट के लिए ऑन रखी. सो 1 मिनट के लिए ही रिएक्शन होगा. फॉर दैट 1 मिनट एंड विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, the substance will be produced. If you switch off the battery, the entire reaction is over. अब वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा because it is a kind of a non-spontaneous reaction. मतलब जितना आप चार्ज जितने टाइम के लिए सप्लाई करोगे उतना ही रिएक्शन होगा, उतना ही अमाउंट प्रोड्यूस होगा. So we can say that
the amount of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the charge, or it is directly proportional to the quantity of electricity flowing through that electrode. That is the first law of electrolysis. Very simple. जितना चार्ज जितने टाइम के लिए आप डालोगे, जितना चार्ज आप फ्लो करोगे, चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, मतलब जितना करंट आप जितने टाइम के लिए डालोगे उतना ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और उतने अमाउंट का सब्सटेंस आपको प्रोड्यूस होगा. सो वी कैन से दैट with respect to first law of electrolysis, that amount of substance deposited or liberated at, simple form में, at any electrode is directly proportional to the charge or quantity of electricity, or you can say the quantity of charge. तो जितना चार्ज फ्लो करोगे उतना रिएक्शन होगा, उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है, बट अभी इसका मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो वो कैसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव्ड होगा, उसको बराबर से इसको आपको समझना जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला. तो हम लोग को एक फॉर्मूला चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहिए जिससे हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सके कि कितना अमाउंट का सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है इन ग्राम्स. देन यू कैन कन्वर्ट इनटू अ वॉल्यूम एट एसटीपी. वो डिफरेंट कैलकुलेशन मोल कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं. सो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है फर्स्ट लॉ का. सो वी नीड टू फाइंड आउट मैथमेटिकल फॉर्मूला या कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लॉ. So what is the mathematical approach with respect to first law? हम लोग एक formula derive करेंगे. That formula will help us to find out mass of substance at any electrode. Mass of substance what? Deposited or liberated at any electrode. उसके लिए एक formula चाहिए. ठीक है, तो step wise इसको हम लोग derive करते हैं. सबसे पहले इट्स अ काइंड ऑफ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब जितना आपने चार्ज ऐड किया उतना रिएक्शन चलेगा. तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप चार्ज कितना ऐड कर रहे हो. ठीक है, यूजिंग दैट यू कैन फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन और फॉर ऑक्सीडेशन. क्योंकि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल Na प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, सो 1 मोल ऑफ Na प्लस रिक्वायर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 mole of Cu2 plus require 2 moles of electrons to form 1 mole of copper. So you need to know the number of moles of electron, कि कितना इलेक्ट्रॉन मोल्स में फ्लो हुआ है. अब जितना फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करना है, उसका एक फॉर्मूला चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल गया. सो वी नो दैट मास इज नथिंग बट मोल्स इनटू मोलार मास फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट. तो वहां से मास ऑफ सब्सटेंस मिलेगा. मतलब सबसे पहले आप चार्ज फाइंड करो, वो आपको पता होना चाहिए अपने कितना चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, कितना करंट कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ, दैट इज चार्ज. सेकेंड, यू फाइंड आउट हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द एंटायर प्रोसेस. थर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सब्सटेंस फॉर्म. फोर्थ, कन्वर्ट दैट मोल इनटू मास बाय मल्टीप्लाइंग बाय मोलार मास. सिंपल कैलकुलेशन है. चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, and that moles is converted into mass of product multiplying by molar mass. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे फॉर्मूले के अंदर. we need to first step 1 में you need to calculate what? charge, that is Q, and we know that charge is nothing but current into time. Unit of charge is coulomb, current is ampere, time will be seconds. But coulomb is a smaller unit of charge. The larger unit of charge is Faraday. मतलब you need to remember the another unit of charge another unit of Q charge is F, that is Faraday. And what is the value of 1 Faraday? Remember, 1 Faraday is nothing but charge on 1 mole of electrons. 1 mole of electron मतलब 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. उन सबके चार्ज को मिलाओगे तो 1 फैराडे बनता है.
तो वो फाइंड कैसा करेंगे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ 1.66. The magnitude is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. So 1 मोल के लिए कितना होगा? आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से. तो 1 फैराडे इज नथिंग बट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. So 1 electron charge should be multiplied by Avogadro number. So 1 electron charge क्या होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. The magnitude I am taking into Avogadro number 6.02, 3 into 10 raised to 23. So when you multiply, you get a value which is close to 96,500 coulombs. 96500. So that is a charge of 1 Faraday. Charge on 1 mole of electrons. That is 96,500 coulombs. ये याद रखने का. Okay? That is a charge of 1 mole of electrons. So ये use करके आपने charge निकाल लिया. Now step 2. चार्ज के बाद यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है ये आपको पता होना चाहिए. सो लेट अस अज्यूम कि x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ व्हेन द चार्ज इज q. द चार्ज q आपने ऐड किया तो कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ? x. बट वी नो दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 96,500 कूलम. दैट इज 1 फैराडे होता है. 1 फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500. दैट इज 1 फैराडे. सो x क्या हो जाएगा? x विल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन x विल बी इक्वल टू q डिवाइड बाय 965. q x moles of electron हमको निकालना है इसके अंदर. So it will be, sorry, x moles of electron will be charge q. So this will be charge upon 96500. ये मिल गया हमको वैल्यू ऑफ x. अच्छा, q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी. सो मैं फाइनली लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट सर्किट में जो पास हुआ इज इक्वल टू q अपॉन 96500 और IT अपॉन 96500. ठीक है. और याद रखना इसका यूनिट होता है मोल्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर रहे हो. चलो ये आपने फाइंड कर लिया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आपको मिल गया. स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. सो सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट इनटू, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं, इनटू मोल रेशो. अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये तो हम लोगों को मिल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, बट व्हाट इज मोल रेशो? सो यू हैव टू रिमेंबर कि मोल रेशो इज नथिंग बट अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट formed during 1/2 reaction. 1/2 reaction मतलब either it is oxidation or reduction. दोनों में से कोई एक ही रिएक्शन होगा, क्योंकि आपका सब्सटेंस आप जिसके लिए फाइंड करोगे तो दो अलग अलग के लिए फाइंड करोगे. एक जो एनोड पे जाएगा वो ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पे जाएगा वो रिड्यूस होगा. सो यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट कैथोड एज वेल एज एट एनोड. तो दोनों के लिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट विच यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द रिएक्शन. सो इट इज, मैं यहां पर लिख देता हूं, मोल रेशियो इज नथिंग बट number of moles of product formed during 1/2 reaction, either oxidation reduction, divided by number of moles of electron used in that reaction. सर ये कैसा मिलेगा हमको? मैं एग्जांपल देता हूं समझने के लिए. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया Cu2+
इट रिक्वायर्स 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 mole ऑफ Cu इन सॉलिड स्टेट. तो प्रोडक्ट कितना बना 1 mole. सो अगर मुझे यहाँ पर मोल रेशियो निकालना है तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 1 mole ड्यूरिंग, इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन. सो 1 mole ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन 2. तो इसका मोल रेशियो हाफ हो गया. सो यू मल्टीप्लाई बाय हाफ हियर. ठीक है. नाउ सपोज वी राइट डाउन Na+. सो Na+ रिक्वायर ओनली 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम इन सॉलिड स्टेट. तो इसका मोल रेशियो कितना हो जाएगा? इसका मोल रेशियो हो जाएगा 1/1, दैट इज 1. सिंपल है. अब सपोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लो क्लोरीन का, Cl- आयंस. ठीक है. इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 1 mole ऑफ Cl2 गैस. ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और Cl2 गैस बन जाता है. अब इसका मोल रेशियो फाइंड करना है. तो यहाँ पर कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना? 1 mole ऑफ प्रोडक्ट बना. कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 2. तो इसका भी हाफ हो गया. सो लाइक दैट यू कैन फाइंड मोल रेशियो विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सो स्टेप 3 में यू फाउंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. अभी स्टेप 4 में क्या करना है? आपको सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है, दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट. तो स्टेप 4 में मैं डायरेक्टली लिख देता हूं that mass of product, mass, mole is nothing but number of mole is mass upon molar mass. तो mass क्या होगा? number of moles into molar mass. तो mass of the product is number of moles of product has to be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? with molar mass. जो भी एलिमेंट का मोलार मास है वो लिख देने का. जैसे यहाँ कॉपर है तो 63.5, सोडियम है तो 23 हो गया, लाइक दैट. तो मोलार मास Cl2 है तो 35.5 प्लस 35.5 71 हो गया. सो मोलार मास से मल्टीप्लाई करना है ग्राम के अंदर. तो दिस इज फ्रॉम द स्टेप 4 यू कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट. अभी मेरे पास स्पेस नहीं है लिखने के लिए, सो मैं फॉर्मूले को एक साथ लिखूंगा. आई विल रब दिस आउट पार्ट एंड राइट डाउन द एंटायर फॉर्मूला कि मास ऑफ द प्रोडक्ट के साथ में हम लोग कैसे बाकी सब चीज डिराइव कर सकते हैं. ओके, वी विल रिवाइज इट. इसको जो भी लिखना है लिख लो अभी, राइट इट डाउन. सो आई विल रब दिस आउट फ्रॉम योर दिस पार्ट. ओके, ये पार्ट मैं रब कर रहा हूं. Okay, so base from the first law क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ? दैट मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट एट एनी इलेक्ट्रो, कैथोड और एनोड, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोग ने कैसा निकाला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट इनटू मोल रेशियो. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल रेशियो. और फिर लास्ट में क्या बचेगा? वापस क्या लिखोगे? मोलार मास. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन पास कैसे निकाला? Q/96500 और IT अपॉन 96500 इनटू क्या बचा? मोल रेशियो इनटू क्या हो गया? मोलार मास. और आइदर इस IT की जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे? Q/96500. ठीक है. So this is how you can, with the help of this first law, you can calculate the mass of product at any electrode. ये आप लोग थियरी में यूज करो, MCQ में यूज करो. बट रिमेंबर MCQ के लिए मैं और एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल के देता हूं आपको. दैट इज W इज इक्वल टू E/F IT. I is current, T is time in seconds, E stands for इक्विवेलेंट मास, जिसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं ऑफ एसिड बेस. हम लोग एलिमेंट का यूज करें. इक्विवेलेंट मास को हम लोग केमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं. तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. से फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक मास 23, वैलेंसी 1, तो 23/1 इक्विवेलेंट में 23 हुआ. ऑक्सीजन एटॉमिक मास उसका होता है 16, वैलेंसी इज 2.
तो 16/2 हो गया, दैट इज नथिंग बट 8, तो उसका इक्विवेलेंट मास हो गया. तो इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. एल्यूमिनियम 27, वैलेंसी इज 3, तो 27/3 इज 9. सो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी करना, उसको केमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं. F स्टैंड्स फॉर व्हाट? फैराडे, 96,500 कूलम्स. ये यूज करके भी आप डायरेक्टली मास निकाल सकते हो. ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इज एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. और ये फॉर्मूला में अगर बराबर देखोगे ना, तो मोल रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड. वो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड ही बन जाता है वैलेंसी के हिसाब से. ओके, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ओनली इन सॉल्विंग एमसीक्यूज. अच्छा, एक फॉर्मूला यूज है कि W इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले में भी सम्स आते नहीं है बट फिर भी ZID, where Z is nothing but E upon F. Z is nothing but E upon F. और Z का नाम क्या होता है? Z is called as इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. देखो, केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट मास, दैट इज एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ये अलग है. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे. मतलब फैराडे से डिवाइड कर दोगे ना इक्विवेलेंट मास को, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बन जाता है, दैट इज Z. ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ कहां यूज करेंगे हम लोग? बाय सॉल्विंग एमसीक्यू. ये आप एमसीक्यू थ्योरी दोनों जगह यूज करना, थ्योरी में ये यूज नहीं करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, आपको ऐसे फॉर्म में ही करना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ. इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं.